Cool. Welcome, guys. Welcome to Upskill Club Season 4, Track 3, Episode number 2, Finance for Professionals. Today, our esteemed finance guru, Himanshu Saluja, will walk us through about what is stock, what is it comprises of, and he'll not only cover the greedy nuances of okay, which stock to buy. He'll holistically talk about the entire depth of it in terms of what is the organization which let's say ensures that this ecosystem runs. He'll start from there to what is fundamentally a share and more. So, Himanshu, over to you. Yeah. Hey everyone. So yeah, as Anupam mentioned, not the financial guru, yeah, but very basic understanding of some terminologies that I had. I would like to share that's all over here. But again, with disclaimer, we won't recommend any stock. We won't talk about any stock doing good in the market or which one should buy, where should money be invested in. It's your choice. We'll just be talking about how you can read how good a stock can be, right? So let's start with that first. Last time we discussed about mutual funds. So do everybody understand stock market, right? I think more than mutual fund, people are nowadays interested in stock market. People think it's an easy way to earn money, right? After the hockey stick recovery after the COVID in the stock market, people were like, यहाँ तो पैसा लगाओ, 100% return आएगा ही आएगा, किसी में भी डाल देते हैं. So yeah, so stock is basically when you invest a money and buy a share and you are entitled as a owner, partly owner in the company, right? And then the company is entitled to share the profits as dividend to you if it makes any profit. So that is what a share is. But let's start with some basic understanding. Everybody of us buys shares. We understand, we see a same stock symbol at two places, NSE or BSE, right? So we need to understand what this NSE and BSE are. Then there is another concept. Somebody is using Grow, somebody is using Kite. What are those? When NSE and BSE are there, what is another level of layer? That is Kite, Grow, right? So NSE, BSE are National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, right? These are primarily who are responsible for uh, providing an exchange service where all the equities and other tradable things, commodities are present, where seller and buyer can sell and buy. But we directly don't communicate with NSE and BSE, right? There is always a layer in between of brokers that help us provide as a experience in which we can do all these buy and sell trades of different things. These brokers are actually your Zerodha, your Grow, and they basically take commission from you for providing you a platform that is talking to a platform of NSE and BSE. And there is another terminology that everybody needs to understand is SEBI, right? SEBI is like, you can say its full form is Security and Exchange Board of India, but it is like the sole responsibility in maintaining that nothing goes wrong in the stock market, right? Maintaining a balance, regulating the securities, checking companies are not doing fraud, checking there is no fraud happening in the stock market, and help in very so that people don't lose money, take care of the retail investors as well. So for all those things, SEBI is responsible. It monitors everything. Yeah, it's a central regulator. So NSE, BSE are what do you think? NSE, BSE are they government or private? Could you repeat the question, Manshu? NSE, BSE are the government organization or private? They should be private. It's just a stock exchange. Yes, yes. So these are private, right? So how can you trust a private player in the market? Right. So there is SEBI for that. SEBI actually is responsible for all the rules and regulations so that how a broker will operate in the market, how a stock exchange will operate in the market, how a company check companies audits are happening regularly, company is reporting the audits regularly. All these things are responsible, and yeah, so that is the job of SEBI. So in India, we have a comparatively very secure market as compared to many countries. So we have done a very good job, I'll say, over there. Cool. Yeah. Any questions till now? Sure. So now we know what a broker is. Now we know what a BSE, NSE, and what a share is, right?
how do you decide, like you want to invest, you decide you want to invest some money because you need to earn a rate of interest, but how do you decide which company should I want to invest in? Like randomly, if I tell you, do you want to invest in some company, what will be the very basic things that you like to check in a company? Anyone? First thing will be stock price. Can I afford it or not? Yeah, that can be one. But let's say people here are earning equal to Anupam, so they can own any stock. Now what about it? What is the second thing? Pranav, you're on mute. The industry that particular company is in, the domain you can say, is it in IT sector or is it in manufacturing sector, pharma, something like that? Exactly. Yeah, you want to understand whether the sector the company is operating in is what is the future? Is it a futuristic sector or a diminishing sector, right? The market is growing or how the market is behaving to those sectors. Exactly. Now let's say you have narrowed down to a sector. What will you do next? Now you know you have money. Now you know I'm going to invest in X sector. Now what will you try to see which company should I invest in this sector? I guess then second factor should be the brand name, the legacy of the company. For example, if I want to invest in manufacturing, I Hmm. guess Tata name is a big name over there, whether it be steel, cars, or something like that. So my first sense would be to go in some legacy companies like that that have some brand value, that have created some brand value over the time. Cool. So you will So see the that would be reputation of the company in the market, right? These companies are reputed and they have a brand name because over the year they have generated wealth for the consumers and they are doing good. Their metrics are good, right? So that is the safest way. This is I think 90% of people who I know I'll take back the percentage, but I think majority of people will be investing money in like this only. They'll try to choose a sector. Let's say आज IT में डालना है, Infosys में डाल देते हैं, right? Like this one. It's very difficult to choose a stock that you don't buy. Like example, 20 Micron, Infibeam. You don't know the names of these companies rarely. So you don't go in those companies. Then you'll be mostly investing in large caps that have provided a good return over the year, like 10, 20 years, at least 10 years of runtime they have that they've been profitable and tested in all economic conditions of the country, right? So that is one way. But let's say Tata also has many competitors, right? yeah. And they also have a good name. Like you want to invest in TCS and Infosys, both have good name. How do you decide now which one to invest in these two, right? One way is the old school. We go and buy a mutual fund, let someone else decide, right? But now you want to have a little more kick, you want to be a little more thrilling. So you said, I'll take this decision to where to invest in. So what will be the factor that you will try to see? As a recent investor, I would say, uh, and I guess most of people do it like this only. We see how the stock prices have gone in last 1 month, 6 months, 3 years, and 5 years, something like that. So that's my Good. way to go. Got it. Yeah, that is how retail investor think. But won't you like to see how the company is actually doing? Let's say you said you want to invest in Tata. I'm not saying, let's say you want to invest in X. Don't you want to, doesn't matter how X is doing, what is the profitability, what is the, like say the price of share is 1,000 rupees, but won't you want to judge whether the company's share should be 1,000 rupees or not right now? Seeing the past, one way is seeing past. Previously it was 900, today it's 1,000. Previously it was 1,100, today it's 1,000. But it has gone from 1,100 to 1,000. There are different reasons for it. One can be the Yeah. market sentiment of the people, right? Sometimes market sentiment hurt a company, even though company's financials are really good. Such times you want to invest in company when market sentiments are against, but the company's foundations are very strong. Company is doing good. So there has to be some more good metrics that we should know to understand what is the true nature of company, right? When you join a company, also, let's say you want to join a startup, how do you judge whether I should join this startup or not? There might be some factors, right? You won't want to join a startup who, let's say, you don't know where it will be in next few months. The Yeah. first How much? question we see if do they have money in the bank, and that same is also Yes. true for the big firms you want to invest. Yes.
One of the common So questions when I started was which I didn't understand, and then still I'm creating levers to understand it better. Is the stock overvalued? That is one of the common questions, and there are various ratios I guess we use to understand it in that sense. Primary one being P ratio, EPS, hmm, and all those, and yes, then there are 6 or 7 fundamental ratios, and there actually there are more than 100 in case you just yeah, go and there's no mathematics left which you cannot create it to. But there are some fundamental ratios. Example, how do I know I'll not be investing in Nika was if 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 it just has P ratio of 1600, it just doesn't make sense. It yes. just doesn't make So sense. we'll decide what this PE ratio is. Anupam started a terminology called PE ratio, and everywhere I think there is no platform which does not mention a PE ratio of a stock. Like I think this is the most widely used. But before going here, Anupam mentioned there are many ratios, right? Yeah, Anupam is exactly right. The like since it's a score, since this is a earning platform, right? People have mathematically devised so many formulas to represent so many things that it's really hard to keep a track of all the formulas. As a retail investor, I will start sharing some which you can see are very common one, not the one that are too advanced, right? So something on one hand, he sees what is the money in the bank, right? So yeah, so you want to see what is the working capital ratio of the company. So this is very interesting. What is the working capital ratio of the company, right? Company has how much money company has in the bank, right, to operate. Let's say a company has assets of 800 crores, right? But every company has liabilities also. It's not only assets, right? Now, assets minus liability or assets divided by liability is actually the working capital ratio. So if you have more assets and your liabilities are less, your ratio, working capital ratio is more, right? That means you have money in the bank, correct? But now another people come up with and saying, यार assets तो 800 करोड़ के हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना इनके पास 800 करोड़ का कैश है. कल को अगर इन्हें 800 करोड़ या 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट आ गई तो ये कितनी जल्दी इस कैश को जनरेट कर पाएंगे, राइट? लिक्विडेट कर पाएंगे, लिक्विडिटी जनरेट कर पाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो अब मान लो इस 800 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए तुमने अपनी प्री पेमेंट कर रखी है अगले 2 साल की किसी वेंडर वुंडर को या 1 साल की, राइट? अब वेंडर से प्री पेमेंट तो वापस लोगे नहीं, करेक्ट? तो ये 200 करोड़ अब मान लेते हमने सामान खरीद रखा है, इन्वेंट्री खरीद रखी है अगले 6 महीने की, ठीक है? इस इन्वेंट्री को भी तुम अब इन्वेंट्री को तुम नॉर्मली नहीं बेच पा रहे, वैसा तो है नहीं कि इस इन्वेंट्री को तुम मॉर्गेज रख के कहीं से कुछ फंड उठा के पैसे जनरेट कर लोगे, राइट? तो लोग एक और रेशियो के लिए आए जिसको लोगों ने क्विक रेशियो बोला. क्विक रेशियो को उन्होंने मोर लिक्विडिटी से रिलेट कर दिया. उन्होंने बस ये बोला जो अभी तक हमारे पास एसेट्स है ना, उसमें से उतना अमाउंट हटा दो जितने अमाउंट को हम जल्दी से लिक्विडेट नहीं कर सकते. मतलब इन्वेंट्री वाला हटा दो, प्री पेमेंट्स हटा दो, राइट? और अब इसे लाइबिलिटी से डिवाइड करो, ठीक है? तो जैसे मान लो 400, अगर यहाँ 600 हो गया था, 600 बाय 400 हो जाएगा, करेक्ट? तो ये दोनों थोड़े से रिलेटेड है. बट जो वर्किंग कैपिटल वाला है उसमें आप ये सब नहीं हटाते, जो क्विक रेशियो उसमें आप ये सब हटा देते हो, ठीक है? इससे आपको ये पता चलता है कंपनी हेल्दी चल रही है, मतलब कंपनी तो सही चल रही है, एसेट ज्यादा है कंपनी के, राइट? ऐसा नहीं है कि कंपनी के एसेट्स इतने से हैं और कंपनी लायबिलिटीज ले जा रही है उधार में. मानशु, एसेट्स में मतलब डिस्टिंग्विश, मतलब एसेट्स का मतलब जैसे कि क्या हो सकता है, मतलब एक दो के अलावा मतलब थोड़ा डिफाइन कर पाओगे? यार एसेट्स अगर जब आप होते कोई कंपनी। हम्म, हाँ बोलो। अगर आप किसी भी कंपनी को देखोगे, राइट, उनकी फैक्ट्रीज होती है, ठीक यस। है? उनकी फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, एकड़ में फैली होती हैं, वो भी कंपनी का एसेट हो सकता है, राइट? वो लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के लिए, लैंड नहीं होती, ठीक है? और मॉनेटरी उनके बैंक में बहुत सारे पैसे हो सकते हैं. बैंक फिजिकल एसेट्स भी होते हैं और बैंक में भी पैसे होते हैं, राइट? कंपनीज के पास गॉट इट। और गॉट इट। और जो रियल शेयर्स एस्टेट होते हैं होती है, उसको भी रियल एस्टेट। गॉट इट। रियल एस्टेट हो गई. शेयर्स को आप एसेट्स नहीं बोलते ना, मतलब शेयर उनके पास, जो शेयर कंपनी के पास है, राइट, वो कंपनी की वैल्यूएशन परसीव्ड मार्केट वैल्यूएशन है. अब कंपनी ऐसा कंपनी नहीं कर सकती कि आज ही आके अपने आप को 5% डाइल्यूट कर दे. जब कंपनी को अपने आप को 5% डाइल्यूट करना है, सोचना पड़ेगा, कुछ तरीका होगा डाइल्यूट करने का, राइट? कोई ब्लॉक डील कर रही होगी तो उसे बताना पड़ेगा मैं ब्लॉक डील कर रही हूँ इतने सारे शेयर्स की, वो सब हो जाएगा. बट हाँ, स्टॉक्स को तुम बोल सकते हो उनके एसेट्स, बट उन्हें फिर बेचने तो पड़ेंगे उसे, राइट, टू अर्न. तो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कंपनी ने क्या पता बॉन्ड्स खरीद रखे हो, राइट? और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी चीजें उनसे जिससे भी वो पैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट, जो उनकी लायबिलिटी नहीं है. गॉट इट।
liability is just like क्या कहीं से उनको देना है, मतलब they have to return back to the someone else, like बैंक हो गया, या कहीं से उन्होंने mortgage करा, मतलब कहीं हाँ से कुछ उन्होंने आप कुछ लोन पे। मार्केट से डेब्ट उठाते हो, आपके पास सारा पैसा थोड़ा होता है जिसपे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट। फिर आपको टैक्स भी देना होता है गवर्नमेंट को। ऐसा हो सकता है कि आपका टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ हो, गॉट इट। टैक्स भी हो सकता है। वेंडर्स को हो सकता है कि आपकी वेंडर पेमेंट चलती हो 12 महीने की साइकिल में, आपकी कुछ पेंडिंग पेमेंट्स पड़ी हो वेंडर को, सप्लायर को, आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना जो लाइबिलिटीज हैं, जो भी आपके खर्चे बचे हुए हैं। गॉट इट। सिंपल टर्म में आई थिंक खर्चे बचे हुए, लेकिन हाँ काफी और डिटेल में हो सकता है। गॉट इट, मैं समझ गया। Anshu, थैंक यू। between working capital ratio and quick ratio, um, are these two ratios domain specific, or are they in general? मतलब, just let me give you an example. For example, for a company like Urban Company, ठीक है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल रेशियो और शायद क्विक रेशियो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, या फिर अगर मैं अर्बन कंपनी को जज करूंगा तो शायद मैं उस पे जज करूंगा, उसकी क्विक रेशियो पे जज करूंगा। ओके, बट मेरे भाई की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है, उसके लिए मैं उस पे शायद उसके वर्किंग कैपिटल रेशियो पे ही जज करूं, बिकॉज उसके पास जो इन्वेंट्री है उसके अंदर उसका रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, 10-12 लाख का उसका पास रॉ मटेरियल पड़ा है, दैट इज हिज एसेट्स ओनली, एंड ही कैन इजीली मॉर्गेज हिज दोज एसेट्स टू जनरेट द कैश। तो that's why, मतलब considering this example, मतलब do you think is it something domain specific, or is it कि सब ऑलमोस्ट सभी जो है इसी पे जज इजीली करे जा सकते हैं? नहीं, अब जैसे अरुण कंपनी का भी एग्जांपल लिया तो हाँ हो सकता है कि आसपास आए, मतलब द रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा हो, बट देयर आर थिंग्स दैट अरुण कंपनी आल्सो, लाइक मान ले पार्टनर की पेमेंट बची हुई है, ठीक है, वो हटाना पड़ेगा हमें। देन हो सकता है कि हमने भी सामान खरीद रखा है, ये जो पार्टनर्स को हम बेचते हैं वो वाला सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, राइट, बहुत सारा इन्वेंटरी में। ट्रेनिंग किट्स पड़ी हैं पार्टनर की, बहुत सारी खरीद रखी है पहले। स्विगी वाले ने बाइक्स, मान ले ग्रिप व्रिप ग्रिप किसी से टाई अप कर रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों से, उनको पैसे दे दिए कि 6 साल तक, 6 महीने तक जितनी भी इलेक्ट्रिक चाहिए होंगी हमें। सो मतलब देयर आर एवरी कंपनी दैट आर ऑपरेटिंग इन दिस थिंग, राइट। और तुमने सॉफ्टवेयर की भी पेमेंट कर रखी हो सकती है, प्री पेमेंट्स कर रखी हो सकती है, राइट। सो देयर दे माइट बी सिमिलर इन सम कंपनीज एंड सम कंपनीज माइट बी डिफरेंट, बट होते दोनों में, राइट। सो इट्स जस्ट मोर अंडरस्टैंडिंग। हाँ कूल, तो ये समझ आया। अब मोस्टली स्टॉक मार्केट में, मोस्टली, सारी नहीं, कंपनीज होती है जिनमें पैसा लगाना चाहते हैं जो प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल में भी लगाते हैं इस उम्मीद में कि हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी जिंदगी, बट मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि उस कंपनी में पैसा लगाएं जो हमें प्रॉफिट दे रही है। यस, जोमेटो। प्रॉफिट अगर मैं बोलूँ तो जस्ट लाइक स्टॉक वैल्यू की बात आप कर रहे हो ना, या किसी के नहीं, मैं स्टॉक कंपनी अगर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। मैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कमाई लूँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जो मैंने सस्ते में खरीदो उसे महंगे में बेचना, है ना। यस। यहाँ मैं जज कर रहा हूँ जो चीज मैंने सस्ते में खरीदी है वो महंगी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहूंगा जो प्रॉफिटेबल है। अगर कोई कंपनी है जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस मेरे हिसाब से तो शायद बढ़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली। मार्केट सेंटीमेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से शायद ना भी बढ़े, राइट। बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ जजमेंट कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ मोस्टली, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आजकल स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है ओवरऑल, बट स्टिल स्टॉक मार्केट में आ गए हैं जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉफिट के लिए कंपनी का अलग अलग मेजर है। एक तो है कि पहले तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है ये बताए। सो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसको कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट में भी दिखा सकेगी पर नेट प्रॉफिट में भी दिखा सकेगी, लेकिन असली में जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो कंपनी का वो पूरा, मतलब सब हटा दो, तो उसने टैक्स कितना देना था, उसने पैसा उठा रखा था, उस पर इंटरेस्ट कितना देना था, उसने सैलरी वैलरी सब कुछ जब हटा दिया, तो जो बचा वो नेट प्रॉफिट है। तो मतलब यू शुड बी इंटरेस्टेड इन नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट व्हाट इज नेट प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेट प्रॉफिट असली में बताता है कितना पैसा कंपनी ने जेब में डाला। मतलब वो हो सकता है री इन्वेस्ट कर दे बाद में, बट वो प्रॉपर प्रॉफिट क्या है।
हिमांशु, ग्रॉस प्रॉफिट को EBITDA भी बोलते हैं क्या, या वो नहीं टर्म नहीं डिफरेंट? नहीं 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 नहीं, बेटा कम्प्लीटली डिफरेंट है। उस पे आएंगे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी भी हमने आजकल नहीं सुननी इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जिनके पास नेट प्रॉफिट होता नहीं है, तो वो एबिटा बता देते हैं हम लोग। हाँ, तो startups prefer to talk about operating EBITDA rather than net profit. नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक रेवेन्यू कमाया, फिर आपने कुछ खर्चा किया, उसको आपने निकाला, ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट है। इस खर्चे में जब आप सारे खर्चे निकाल देते हो, ऑपरेटिंग खर्चे जो होते हैं कंपनी के, जो सैलरीज जानी है, जो आपने इंटरेस्ट देने टाइम, उसके बाद जो बचता है आपकी जेब में, वो आपका नेट प्रॉफिट है, टेक होम। आज के शार्क टैंक में देखा होगा, एंड में वो आपसे पूछते हैं ये बताओ जेब में कितना लेके गए थे घर पे, ठीक है। वो वही क्वेश्चन है जो Shaadi.com वाले पूछते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट नेट प्रॉफिट इज। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेट प्रॉफिट तो आया, बट हमें हमें ये नेट प्रॉफिट दिख भी जाएगा। सो आई एक टिकर टेप करके आई यूज, लाइक अदर पीपल कैन आल्सो यूज, बट टिकर टेप में यू आर एबल टू सी, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। ये नोट हो रहा है ना? दी नोट हो रहा है मतलब? अभी वो बनाते थे जो नोशन। ये नोशन में है ये सब, बट ये तो ठीक है। अनुपम स्क्रीन विजिबल है क्या? Yeah, yes, Himanshu, हाँ हाँ please है। go ahead. टिकर टेप दिख रहा था क्या? थोड़ा बड़ा कर Yours, लेना एक हाँ, बार। now it is visible. Yes. ठीक है। तो किसी भी कंपनी में चले जाते हैं। अब ये कंपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड कुछ नहीं है, जस्ट रैंडम एक कंपनी चूज कर रहे हैं, ठीक है। सबने नाम सुना होगा इस कंपनी का, राइट। अभी एरो शो भी हुआ है बैंगलोर में, राइट। तो हाँ, क्वाइट फेमस कंपनी। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म हमारी कहाँ पे हेल्प करता है? अभी हम इनको कंफ्यूज नहीं होंगे टर्म्स पढ़ के, बट ये हमें काफी सारे रेशियोज दिखा रहा है, राइट। इट्स शोइंग मी अ लॉट ऑफ रेशियोज ओवर हियर दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड। देन सेकेंडली आई कैन गो टू फाइनेंशियल्स, राइट। ये टर्म आ गया है यहाँ पे, विकास जो तुमने पूछा था डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहे हैं। सो दिस इज दी एवरी ईयर, लाइक फॉरवर्ड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2016, 17, 18, 19, ठीक है। तो इट इज ओवर हियर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं कि मैं क्या देखूं। तो ये नेट सबसे पहले इनकम नेट प्रॉफिट, सॉरी सॉरी, नेट इनकम वही है जो आप कह रहे थे, नेट प्रॉफिट अभी और अभी डिस्कस ग्रॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट। इनको ना हम ओपन करेंगे। तो इफ यू सी देयर आर एरोज, राइट, दीज एरोज विल हेल्प गॉट यू इट। सी दी एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, राइट। गॉट इट। हाँ, तो ईपीएस से स्टार्ट करते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, राइट, तो कंपनी कुछ पैसे कमा रही है, तो पर शेयर वो कुछ पैसे कमा रही होगी। अब हम ये मैट्रिक्स देखते हैं कि कंपनी पर शेयर कितने पैसे कमा रही है, ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत छोटी छोटी मैथमेटिक्स करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कंपनी है जिसके 10 शेयर है बस, ठीक है, और उसकी अर्निंग 125 रुपए है, ठीक है, और उसने 25 रुपए का डिविडेंड दे दिया आपको, ठीक है। तो 100 रुपए बचे। अब 100 रुपए और 10 शेयर हैं। अब 100 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है पर शेयर अर्निंग क्या आती है, जो कि 10 ही आती है। ये समझ आया? बस जो अर्निंग थी उसमें से जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड, क्योंकि वो डिविडेंड भी एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को ही मिल रहा है, तो उसको हमने हटा दिया। उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया जितने शेयर है, उसमें पता चल गया ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर से आपको पता चलता है एक शेयर, यहाँ पे देखो ईपीएस देखोगे तो अच्छा खासा है, राइट। और ये अप डाउन होता रहता है। अब ये डिपेंड करेगा कैसा फाइनेंशियल ईयर गया है, ठीक है। ईपीएस समझ आया? अब मतलब मतलब जो ये शेयर बड़ा नहीं। 25, इसलिए मतलब, तो 25 रुपए जो तुमने हटाए हिमांशु, वो कह रहे हो कि वो जनरली डिविडेंड के लिए हम हटाते हैं, रिबेट का और कुछ भी हाँ मीनिंग हो सकता है? हाँ, मतलब वो है तो अर्निंग ही, लेकिन वो अर्निंग अब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो उसके बाद पर शेयर कितना बचता है, ठीक है। समझ गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहा ये था। ये अर्निंग वो नेट इनकम वाली बात है कि नेट इनकम बचा, उसमें से आप पर शेयर डिवाइड कर रहे हो आप, या टोटल इनकम जो उसने कमाई। पहले नेट इनकम और टोटल इनकम में मत जाओ, इसलिए मैंने कहा था तुम वो टर्म्स को भी जा रहे हो उन टर्म्स, ठीक है। ये टोटल अच्छा। अर्निंग है कंपनी की, ठीक है। अर्निंग पर शेयर अच्छा। कितनी,
हुई। अच्छा, ये शेयर कितना बड़ा वो नहीं है, बट ये शेयर कितनी अर्निंग हुई इसका वो है। कंपनी में शेयर मान कितना लो 100 बड़ा शेयर वो, थे, हाँ, कंपनी में मान लो 100 शेयर थे और कंपनी ने साल भर में 100 रुपए कमाए, तो हर शेयर पे कितने रुपए कमाए कंपनी ने? 1 रुपए। एक ही। दिस इज कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर। अब हिंदुस्तान ये इनके एचयूएल के लेवल पे एक 100 शेयर तो होते नहीं, इनके लाखों होते हैं शेयर्स, और करोड़ों का प्रॉफिट होता है। हेंस वो नंबर बताता है कि एक एक शेयर के अगेंस्ट कितना पैसा कमाया तुमने। So ठीक है। um, I missed the first session, maybe if repetitive, but 2600 रुपये हम कंपनी को दे रहे हैं तो वो 80 रुपये कमा रही है. In other words, can we say that? गुड गुड क्वेश्चन। नहीं, हाँ, वो अलग होता है। मैं बोल तो ये नेट प्रॉफिट है। पहले नेट प्रॉफिट इसलिए मैं पहले सबसे पहले नेट प्रॉफिट बताया था तुम्हें, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट आया ना, अब डिविडेंड कंपनी उसी प्रॉफिट में से देगी। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी की अर्निंग अगर 100 करोड़ थी और कंपनी की प्रॉफिट नहीं था तो वो कैसे 100 करोड़ में से पैसा बांट सकती है? नहीं बांट सकती ना। तो पहले नेट प्रॉफिट पे जाएगी वो, फिर नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो डिविडेंड में देगी तुम्हें। उसके बाद जो पैसा बचा वो कह रही है इतना पर शेयर अर्निंग है ये। और वो कंपनी नहीं बोल रही है, हम लोगों ने मैट्रिक्स निकाली है कि पर शेयर अर्निंग कितनी आई है। इससे शेयर प्राइस डिसाइड नहीं होता, क्योंकि शेयर प्राइस तो बाय एंड सेल के प्रेशर से डिसाइड होता है, किसी भी मैट्रिक्स से डिसाइड नहीं होता। Right. ये नहीं अमन के क्वेश्चन था, शेयर प्राइस कभी इनसे डिसाइड नहीं होता। ये शायद तो लीवर्स हैं जिसे देख के लोग डिसाइड करते हैं मैंने खरीदना है, क्या करना है। हेल्थ दिखा रहा है, कंपनी की हेल्थ मेजर करने का तरीका भी बोल सकते हो। बट शेयर प्राइस तो डिपेंड करेगा बाय एंड सेल प्रेशर और मार्केट सेंटीमेंट वगैरह सब। समझ ठीक गया। है। थैंक। हाँ, तो अब हमें अर्निंग पर शेयर पता चल गई। अब ना एक सबसे कॉमन चीज जो हर जगह दिखती है ना, वो होती है पीई रेशियो। ठीक है, एक मिनट यार, ये ओवरव्यू में, राइट। पीई रेशियो क्या होता है? तो पीबी, राइट। पीई, पीई पहले पीई की, सॉरी माय एरो इज ओवर हियर, पीबी पे तो बाद में आएंगे। गॉट इट। सो पीई रेशियो ना प्राइस अर्निंग रेशियो इसका मतलब है, ठीक है। और ये हम लोग ने अभी ईपीएस समझ लिया। अब ये कहता है कि मनी तुम कितना डालने को रेडी हो जिससे $1 या एक उसकी यूनिट की अर्निंग हो। समझो, कितना मनी तुम डालने को रेडी हो जिससे ₹1 या एक यूनिट की अर्निंग हो $1 की। पिछले वाले में जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मैंने वो एग्जांपल नोट भी किया हुआ था, मैं एक बार अपना नोशन खोल देता हूँ, दैट विल हेल्प अस आउट। ठीक है, तो हमने कहा था नंबर ऑफ शेयर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है यार। इट ये इज हो रही विजिबल, थी। इट इज विजिबल हिमांशु। अच्छा, मेरे को हाँ, नहीं पता, विजिबल। पता नहीं, ठीक है। हाँ, ये रहा, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर 10 थे। हमने कहा था प्राइस ऑफ ईच शेयर 50 आया था। नेट अर्निंग हमने बताया, नेट प्रॉफिट हमने बताया था 125 आया था, डिविडेंड 50 आया था। ईपीएस कितना आया था हमारा? अर्निंग पर शेयर हमने 10 निकाला था, राइट। अब हम कह रहे हैं कि पर शेयर 10 रुपए कमा रहा हूं, राइट, और 50 का एक शेयर है। तो पीई रेशियो क्या हो जाएगा? जो एक शेयर की वैल्यू है और एक शेयर से ईपीएस कितना आया है। यस। अच्छा। इसको गेज करने का इजी तरीका होता है कितने सालों में मेरा पैसा जो शेयर का लगा वो वापस आएगा। इजी वे टू अंडरस्टैंड इट इज, अगर मैंने 100 रुपए डाले और इसी रेट से अगर मुझे पैसा वापस मिलते रहा तो मेरा जो मूल है ना वो मुझे कितने सालों में वापस मिलेगा। पी रेशियो ये बताता है एक्चुअली, टू सिंपल मेट्रिक। यस, समझ गया। ठीक है। मतलब एक शेयर में तुम्हें एक शेयर से तुम्हें 10 मिल रहा है, यानी 10 कमाने के लिए तुम्हें 50 लगाने पड़ रहे हैं, राइट। तो एक कमाने के लिए तुम्हें 50/10 लगाना पड़ेगा, राइट। और फिर तुम्हें आ रहा है, अगर तुमने 10 रिकवर करने हैं तो इंटू 10 हो जाएगा, जैसे अनुपम ने बोला, उतना टाइम तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मतलब आज तुमने तो सौ अब रुपये सोचो लगाए, यार, सॉरी बच्चों, आज तुमने हाँ, 100 रुपये लगाए और पी रेशियो आता है 10, तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो मतलब से 10 साल में तुम्हारे 100 रुपये कंपनी तुम्हें वापस कर देगी एक तरह से। अब वो इन फॉर्म ऑफ द लेट्स से रिटर्न्स दैट इट इज गिविंग यू। दिस डजंट काउंट द कैपिटल गेन दैट यू विल हैव। कैपिटल गेन इज कि स्टॉक प्राइस अगर ऊपर गई तो आप उसी पे आप बैठ लेते हो एक्चुअली। तो अगर स्टॉक प्राइस मान लीजिए सेम रही, 100 की 100 ही रही 10 साल तक, तो तेरा 100 का 100 रुपये कंपनी 10 साल में वापस दे देगी। उसके बाद जो भी अर्निंग होगी देन तुम पैसा कमाना शुरू करते हो, इफ कैपिटल गेन वॉज फ्लैट। कुल हिमाचल में। तो आप सोचो अगर कंपनी का 1600 1700 पीई रेशियो चल रहा है, right?
तुम मतलब कितना बुलिश हो गए उस कंपनी का शेयर खरीदने में, क्योंकि तुम्हें लगेगा कंपनी कहीं पे आके बीच में एक हॉकी स्टिक मारेगी जहां पे ये सब रिकवर हो जाएगा मेरा। करेक्ट, दैट इज व्हाट यू आर बेटिंग ऑन। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे मेंशन होगा कि HAL का कितना चल रहा है। ठीक है, देखो HAL का पी रेशियो इज 17। ठीक है, सेक्टर पी रेशियो का मतलब पता है? तो बेसिकली इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही है उसका एवरेज। उनका एवरेज पी रेशियो कितना चल रहा है, राइट? मतलब इस सेक्टर, अब यार पी रेशियो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही चल रहा होता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपनी के फ्यूचर पे वेट करते हैं, कंपनी के प्रेजेंट से ज्यादा, कि मतलब प्रेजेंट तो अच्छा कर रही है पर फ्यूचर भी अच्छा करेगी। तो बहुत सारी कंपनीज होंगी, उन सब कंपनीज को एक्चुअली ना यहाँ पे दिखाता भी है। तो यहाँ पे आप पीयर्स पे जाओगे तो पीयर्स में जाते ही तुम्हें सारी कंपनीज दिख जाएंगी जो इसके जैसी हैं, उनके सबके पीई रेशियो भी दिख जाएंगे, राइट? अगर पीई रेशियो किसी का बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसमें कोई और रीजन होगा जिसकी वजह से तुम बेट कर रहे हो, मे भी तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि कंपनी पे इतना इतना ज्यादा पीई रेशियो क्यों है, लोग इतना ज्यादा बुलिश क्यों है इस कंपनी के लिए, राइट? जब इसकी अर्निंग इतनी नहीं है। तो दैट इज व्हाट पीई रेशियो इज। अब पीबी रेशियो एक नया है, ठीक है? पीबी रेशियो आई थिंक कम सुना होगा, इतनी जगहों पे जब तक ऐसी कोई साइट ना खोलो जो प्रॉपर एनालिसिस करके दे रही हो वहां पे नहीं लिखा होता। तो ना एक बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है जो हमें समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमने समझ लिया कि ईपीएस हमने समझ लिया, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, पीई रेशियो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक कंपनी है, जिस दिन वो कंपनी मान लेते हैं कि पूरी डिसॉल्व हो गई और मैं उसके सारे एसेट्स बेचूंगा, उससे जो रिकवरी आएगी उस अमाउंट को जब मैं सब लोगों में जो भी उसके शेयर होल्डर है उससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर से डिवाइड कर दूं, और जितना रिटर्न मैं तुम्हें दूंगा वो बुक वैल्यू होगी। ये समझे? अगर कंपनी के मान लेते हैं ओरिजिनल एसेट वैल्यूज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बैंक में पैसा, जो भी उसको पैसा लेना था, उसके बाद जो भी एसेट बचे उनको मैं उसी बुक वैल्यू पे जितनी उन्होंने मेंशन करी है अपनी शीट में उस पे अगर बेच दूं आज, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं उसके शेयर होल्डर्स में बराबर बांट दूं, तो जो अमाउंट पर शेयर आ रहा है वो बुक वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर मैंने 50 रुपए का शेयर लिया कंपनी बाय चांस सब कुछ बिक गया और एक शेयर तो मुझे 4 रुपए 60 पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उतना ही मिलेगा तुम्हें वापस। ठीक है, नहीं, अच्छा 4 रुपए मिलेंगे ना कि 54 रुपए? 54 अगर मिल रहे होते तो बुक वैल्यू 54 कहलाती ना। अब यही तो बात है ना, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू हो सकता है ना उसके शेयर प्राइस, बहुत शेयर प्राइस उस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना। अब तुम ये नहीं समझ, शेयर प्राइस इस पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता हाँ है शेयर हाँ, प्राइस मेक बहुत सेंस। ऊपर चल रहा हो, हाँ हाँ हाँ, प्राइस मेक सेंस, आसपास भी मेक ना सेंस। चल रहा हो, राइट? अब जो पीवी रेशियो होता है ना वो बस ये बोलता है कि करंट शेयर मार्केट में क्या चल रहा है और बुक वैल्यू क्या आ रही है पर शेयर की, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो पीवी रेशियो आ गया, राइट? मान लो हाँ, करंट, same। हो सकता है ये 1 से ज्यादा हो, करंट शेयर मार्केट में 100 रुपए चल रहा हो लेकिन उसकी बुक वैल्यू 10 रुपए आ रही हो, राइट? तो 100/10 चल रहा होगा, तो एक तरीके से अपने ओरिजिनल वैल्यू से 10 गुना वैल्यू पे चल रहा है वो शेयर। करेक्ट। हाँ 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 तो हाँ, मेक सेंस। हिमांशु, माय क्वेश्चन इज कि ये कब डिसाइड होता है बुक वैल्यू? जैसे जब भी हम लोग ने सुना है जब लॉन्च होती है कंपनी, आईपीओ या जो भी होता है, तो उस टाइम पे जैसे डिफाइन कर दिया जाता है। तो नहीं नहीं, डज दैट बताओ बुक बताओ। वैल्यू चेंज डेली? डेली तो नहीं, डेली नहीं, जब भी आई थिंक फाइनेंशियल्स बताती है कंपनी तब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी बुक वैल्यू कितनी चल रही है। तो बुक कीपिंग तो कंपनी खुद करती है ना अपनी, अच्छा, हर एंड साल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल। द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स वो डिफाइन हाँ करती है ये है बुक वैल्यू मेरी अभी। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्ट। तो जैसे अर्बन कंपनी का भी फिर ऐसे ही होगा, मतलब आई मीन सिंस इट्स नॉट पब्लिक बट स्टिल बुक वैल्यू इज द वैल्यू दैट वी गेट टू नो ऑफ द शेयर, राइट? दैट इज द बुक वैल्यू। नहीं यार, हम लोग हम फिर से गलत उसमें जा रहे हैं डायरेक्शन में। अर्बन कंपनी को तुम इन्वॉल्व, जो हमें वैल्यू पता है, जो हमें नहीं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट वैल्यू वैसे नंबर, बट दैट इज एन ईज ऑफ वैल्यू, राइट? दैट इज समथिंग एल्स। ओके ओके। हाँ, तो मतलब हिमांशु, पीबी रेशियो ये भी बताता है क्या कि कितना ओवर प्राइस्ड है? सॉर्ट ऑफ इंडेक्स तो वही हुआ ना। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स यही तो बता रहा है हाँ कि भाई कंपनी कह रही है कि मैं तो $10 है, मतलब वही है ना, जैसे पुराने जमाने में इन्वेस्टमेंट होती थी तो लोग इसी बात पे इन्वेस्ट करते थे, एसेट्स पे, क्योंकि कंपनी कोर फंडामेंटल इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज थी।
क्लाउड रेवोल्यूशनाइज कंपनी नहीं थी जो ऐसे रातों रात स्केल हो जाएंगे, राइट? पहले क्या होता था, एक कंपनी को स्केल करने के लिए एक नए एरिया को एक्वायर करोगे, उसमें एक नई बिल्डिंग बनाओगे, नए एसेट्स डालोगे, वैसे चलती थी। तो तब ये बहुत क्लोज चलता था, जो पीवी रेशियो होता था दैट विल बी लाइक वेरी क्लोज। अब तो पीवी रेशियोज आर लाइक ऑफ द रूफ होते हैं, कंपनी एक्सपोनेंशियली स्केल भी कर जाती है, और पीवी रेशियो मोस्टली पीवी रेशियो से कम ही चल रहा होगा, क्योंकि हाँ। अनुपम, आप कह रहे थे कि नायका में यू डिसाइडेड टू नॉट टू इन्वेस्ट, सो इज इट बिकॉज पीबी वैल्यू काफी ज्यादा थी? ई ई प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा था। नायका का देख लेते हैं पीवी रेशियो कितना चल रहा है। पीबी और पीई रेशियो दोनों देख लो अभी। एक बार हिमांशु जस्ट कंफर्म, पीवी रेशियो अगर वैसे देखा जाए आइडियली, आई एम नॉट सेइंग अबाउट 30 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, हिमांशु टू कंटिन्यू। तो नायका डिस्कस कर रहे थे, नायका का पीबी रेशियो इज 30 टाइम, पीई रेशियो इज 964.49। टिकर टेप पे इट वुड बी बेटर इफ यू शो इट ऑन टिकर टेप टू मेक इट मोर विजुअल। Yeah, I'll just share my screen. मतलब अगर वैसे देखा जाए तो पीवी रेशियो इज द करंट शेयर प्राइस वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ रातों रात स्केल कर गया, बट एसेट्स के लेवल अगर हम देखें कंसीडरेशन, तो पीवी रेशियो इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट? होनी तो चाहिए पीवी रेशियो अच्छी। हम किसी कंपनी की देख भी सकते हैं, आई थिंक लेट्स गो टू मोर स्टेबल कंपनीज। फिजिकल ये एसेट देखो, वैल्यू। आईआरएफसी का आईआरएफसी, आई होप लाइक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जस्ट सी द पीवी रेशियो 0.92 मतलब 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। and see the dividend डिविडेंड dividend क्या है? dividend yield is actually how much money a company is giving you overall। बहुत सारे dividends होते हैं, ये कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जब उनकी अर्निंग आती है, प्रॉफिट आता है, कि इस प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज में एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटना चाहती है। कुछ तो री इन्वेस्ट करेंगे वो, राइट, ऑफ कोर्स, जो प्रॉफिट आए, कुछ वो बांट देते हैं। फिर 4.8% किस रिलेट टोटल प्रॉफिट का इतना परसेंट है जो बढ़ जाएगा नहीं नहीं, डिवाइड जो शेयर। तुम्हारा स्टॉक प्राइस का नेट नेट रिटर्न कितना आ जाएगा एक साल में, वो रिप्रेजेंट करता है ये। अलग अलग कंपनीज अलग अलग फॉर्म में डिविडेंड्स देती हैं, इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं या राउंड डिविडेंड्स होते हैं, पर एक साल में जैसे तुमने 100 रुपये अगर डाला था कंपनी में, तो 4 रुपये वो कंपनी आपको वापस कर देगी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। वो एक्स्ट्रा मनी ही होता है, एक तरीके से बैंक में आ जाता है। हाँ, इंटरेस्ट जैसे एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे तेरे स्टॉक की प्राइस पे इंटरेस्ट एक तरह से मिलता हाँ, बट एक्स्ट्रा और मनी नहीं है वो, ठीक है। तो पीवी रेशियो में करंट शेयर आप ऊपर रखते हो और नीचे आप अपने बुक वैल्यू रखते हो, राइट? तो अगर बुक वैल्यू ज्यादा है आपकी, तो वैसे तो फायदा है आपका। तो जो 0.92 का मतलब था, आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है, उल्टा ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू बोल सकते हो तुम, ओवर वैल्यू नहीं। करेक्ट। जो पीवी रेशियो है वो ये नहीं बोल रहा कितना पैसा तुम्हें आएगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा, वो ये नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा है कि मार्केट के रुपए का शेयर है, लेकिन इसके एसेट्स को अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ सारे शेयर्स में, तो 110 रुपए का बैठ रहा है भाई। तो 100 बाय हाँ, 110, समझे? गॉट इट। इसको इस तरह से समझो, जैसे इसने हिमांशु ने एग्जांपल अच्छा लिया। जो पहले इंडस्ट्रीज होती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती थी, वो प्योरली एसेट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती थी, जहाँ पे एक्चुअली में फिजिकल एसेट्स होते थे, जिनके बेसिस पे वो निकाल रहे थे कि हाँ हम अगर इनको बेचेंगे, एसेट्स को भी अगर बेच देंगे, कल को कंपनी का दिवाला निकल कर हम इसके एसेट्स को भी बेच देंगे, तो भी हमें इतना रेशियो के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। Whereas the companies now that are in play, they are mostly e-commerce industry. उनके अपने फिजिकल एसेट्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर मोर, मतलब उनकी वैल्यू इज नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल एसेट्स, इट्स मच मच मोर देन देयर फिजिकल एसेट्स। दैट्स व्हाट इज दिस रेशियो इज। तो Yes. जैसे फॉर्मूला इसका फिर ये हुआ ना, फॉर्मूला इसका एटली टोटल नंबर ऑफ एसेट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर नहीं वैसा नहीं, मैं वैसा। वही तो बता रहा हूँ, ये रेशियो, बुक वैल्यू अलग चीज है, और पीवी रेशियो कह रहा है कि एक शेयर की वैल्यू मार्केट में इतने की चल रही है और बुक वैल्यू इतनी चल रही है, उसका रेशियो है वो, समझ रहे हो? पीवी हाँ रेशियो, हाँ। बुक वैल्यू मतलब कह एक रहा है शेयर कि की कंपनी ने अपने सारे एसेट्स इस प्राइस पे बेचे जो प्राइस बुक में मेंशन्ड है, तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा पर शेयर। वो, और ऊपर है शेयर का पैसा जितना है, तो दोनों को डिवाइड जो कर दिया। मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है, मार्केट का शेयर प्राइस कितना भी हो सकता है, वो कंपनी की वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं है। और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं वो। हाँ, तो जैसे कोल इंडिया है, जो तुम्हें ऐसी कंपनी दिखेंगी, कोल इंडिया हो गया, इनका 3 चल रहा है, विच इज फाइन आई फील, राइट? Got it. ठीक है।
तो आई थिंक आज के लिए ज्यादा नहीं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार टॉप टॉप हेडिंग हमने क्या पढ़ा, क्योंकि इट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड इफ यू गो टू अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो आज हमने पढ़ा कि हमें पता चला एनएसई बीएसई और ब्रोकर में क्या फर्क है, राइट। फिर हमें पता चला कि कैपिटल रेशियो क्या होता है और क्विक रेशियो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर अर्निंग पर शेयर क्या होती है, पी रेशियो क्या होता है और पीवी रेशियो क्या होता है, बस बस इतना ही कवर किया है आज हमने, ठीक है। बट ये सारे हमने देखा कि टिकट ऐप पे सारे अवेलेबल हैं और ये चीजें हम देख सकते हैं स्टॉक की, इससे हमें पता चलता है कंपनी की हेल्थ कैसी है। बट और भी क्राइटेरियाज है, सिर्फ यही नहीं है, बट दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स। जब भी कोई कोई बंदा आपको बोलेगा मैंने इस शेयर में इतना लगाया कि कितना पी रेशियो था, so understanding these value you will be able to relate to the discussion, but you can't judge by only these parameters. Eva, can you explain quick ratio फिर से, quick and working capital ratio? देखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, एसेट जिस भी फॉर्मेट में हो, बॉन्ड्स हो, पैसा हो, शेयर हो, या फिर कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उनमें से लायबिलिटीज जो भी होंगी कुछ कंपनीज के पास, तो जब एसेट्स को लायबिलिटी से डिवाइड करते हो तो आपस वर्किंग कैपिटल रेशियो आता है, ठीक है। ठीक है। और लेकिन वर्किंग कैपिटल रेशियो में आपने ये चीज सोची कितनी जल्दी कंपनी लिक्विडेट कर सकती है पैसा देने के लिए। मतलब तुम्हारे पास एसेट्स होते हैं, राइट, तुम कई बार उन्हें कई फंड्स में लगाते हो जिन्हें लिक्विड फंड्स बोलते हैं। उन्हें लिक्विड फंड इसलिए बोलते हैं कि तुम उनको फटाफट पैसे में वापस कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। तो कंपनी का जब क्विक रेशियो ये कहता है कि ये रेशियो सही है, बस इस रेशियो ने एक चीज ध्यान में नहीं ली कि कंपनी उस पैसे को कितनी जल्दी पेमेंट में कन्वर्ट भी कर सकती है अगर अचानक से पेमेंट देनी पड़ गई। तो वो कहती है कि अब इस एसेट्स में से वो वाला पैसा निकाल दो जो जमा हुआ है, जो कंपनी नहीं लिक्विडेट कर पाएगी एकदम से। एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे कंपनी ने कोई प्री पेमेंट कर रखा है, कंपनी के पास कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है, कंपनी जो बोलती है वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी पड़ी है, स्टार्ट टाइम में बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग वर्किंग कैपिटल आपका, वो कंपनी क्या बोलते हैं, यार मेरे पास 2 लाख के तो मेरी इन्वेंट्री बची हुई है, वो कहते हैं 2 लाख की मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 8 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, 10 लाख रुपए के करीब है मेरे पास, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्विक रेशियो अगर वो पूछेंगे तो उसे वो 2 लाख की इन्वेंट्री हटा के बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो 2 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री पड़ी है वो तुम बेच, अगर तुम बहुत जल्दी बेच पा रहे होते तो तुम्हारा बिजनेस चल रहा होता, लेकिन वो इन्वेंट्री जरूरी नहीं एकदम से बिक जाएगी, राइट। Yep. तो उसको हटा दें तो क्विक रेशियो निकालने में काम आता है। Got it. So ये जो भी एनालिसिस है ये कंपनी ही करके देती है आपको, मतलब ये नंबर्स मुझे क्यों ही बता रहे कंपनी हैं? ऑडिट करवाती है, कंपनी ऑडिट्स करवाती है, राइट। एक्सटर्नल ऑडिट्स, वो ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो तुम बोल सकते हो कंपनी, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन आई एम गेटिंग कि कंपनी झूठ भी तो बोल सकती है, ऐसा बोलना चाह रहे हो, राइट। हाँ हाँ राइट। बट कंपनी के ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिट्स भी होते हैं। Got it. ठीक है ठीक है। हाँ, जो ये सब चेक करते हैं कंपनी ने जो बोले वो सच है या नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी कि मतलब रैंडम नंबर नहीं पब्लिश कर सकते ऐसे। इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ एक प्रोसेस होता है जो हमेशा कराना, आपको अपनी बुक्स लगातार चेक करानी पड़ती है, और वो भी एक थर्ड पार्टी ही होना चाहिए। यस, और ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है? ईयरली? यार ईयरली तो डिपेंड होता ही होता है, होता है, होता ही होता है, कंपनी की होता ही साइज पे होता है। डिपेंड करता है। ईयरली तो मिनिमम है। और आई कंपनी थिंक क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है तो आपको दिखेगा, पहले कंपनी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है, फिर कंपनी कहती है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब दोनों पब्लिश होती है। अच्छा ठीक है। मतलब ज्यादातर कंपनीज में, मतलब जो थोड़ी सी भी मिड स्केल कंपनीज होती है क्वार्टरली चलता है। इवन स्टार्टअप्स की जो रिपोर्ट आती है वो भी ऑडिट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी ने कुछ भी बोल दिया, सब स्टार्टअप्स के भी ऑडिट्स होते हैं जब वो रिपोर्ट रिलीज करते हैं। ऑप्शनल है, फोर्स नहीं है, लेकिन अच्छे स्टार्टअप्स करते हैं ताकि करते हैं। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, राइट वो। तो मैं ये रिपोर्ट कहाँ देख सकता हूँ अगर मुझे लेट से पेटीएम की देख? तो यही टिकट ऐप में मैं एक बार आपको लिंक दिखा, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में जहाँ हम गए थे वहां पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, स्क्रीन दिख रही है, राइट, टिकट ऐप दिख रहा है। अभी तुम्हारा ये दिख रहा है फाइल फाइंडर। I'll try to get better at screen share using secondary screen. ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, सो यहाँ पे आप जाओगे तो फाइनेंशियल्स में जा रहे हो, राइट। एक तो बैलेंस शीट भी आ जाती है भाई, यहीं पे आप जाओगे तो आपको पूरी बैलेंस शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है, अभी जैसे 23 की पेंडिंग है, ठीक है। इसको रीड करने का नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट इसके अंदर काफी सारा
खुल रहा है। वैसे आप जब यहाँ पे जाते हो ना, एक चीज और दिखाता हूँ जो हमने डिस्कस नहीं की, जो बाद में करेंगे। सी कंस्टिट्यूएंट्स में जाते हो तो आपको सब कुछ दिखता है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड इनकम में। जब हम जाते हैं ना, हम डिसाइड कर रहे थे कि ये सब असली में क्या होते हैं, तो जब जाओगे तो टोटल रेवेन्यू, इसमें से जाएगा क्या 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 एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट, तो वो सब भी दिख जाता है। डिस्कस करेंगे अभी नहीं। हाँ, तो ये रिपोर्ट आ रही है कंपनी की, इसमें कंपनी ने सब मेंशन किया होगा। बहुत बड़ी ये रिपोर्ट होती है। 500 पेज की रिपोर्ट है एंड दिस इज सबमिटेड टू बीएसई। तो बेसिकली आप जहाँ पे लिस्टेड होते हो आप वहां पे ये रिपोर्ट सबमिट करते हो। दोनों में ही लिस्टेड होती हैं, बीएससी एनएससी में मोस्टली। तो ये देखो सब मिलेगा इसमें, तो मैं एक एक चीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंशियल कॉस्ट, रिपेयर्स, पावर एक्सपेंसेस, एवरी ब्रेकअप इज प्रेजेंट ओवर हियर। फॉर्मूलाज भी मेंशन्ड है सारे नीचे। तो मतलब दिस इज लाइक इफ यू आर गोइंग एट वेरी डीप लेवल, frankly I have not gone at deep level while investing. I have not gone at this deep level, but yeah, if you are interested, you should go at this level. Like people who invest properly in stock market and want to earn should ideally know all of this. Okay. Cool. I guess we are over our time. Thanks, Himanshu, for the introduction. I believe next sessions will be us deep diving more in ratios and understanding stock more and more. This will be an incremental build up. We don't want to, let's say, just take a session and just move away. It is more about we all together learn how to read a stock. Ticker tape would be the base that will be Himanshu and will be using. And that's it, I guess, for today. Thanks, guys. Thanks for tuning in. See you next week. Take care. Cheers. Thank you everyone. Thanks, Himanshu. Thanks. Well,